Good morning, students. Last time we had completed till chapter 50. Now let's start with chapter 51, analogy. An analogy is the common similarity or difference between two things. कोई भी two things है उसमें कोई common similarity है या उसमें कोई common difference है उसको analogy कहेंगे. Complete the analogy by writing the correct word. So कुछ options आपको दिए हैं brackets में, उसमें से हमें correct word select करके analogy complete करनी है. First, open is to close. तो यहाँ पे opposite दिया है कि open है उसका opposite close है, तो near का opposite far. Near is to far. Second, soft is to loud as slow is to. Loud का opposite अगर soft होता है तो slow का opposite. Correct answer will be quick. Third, smart is to intelligent as shy is to sneaky. जो smart और intelligent है वो opposites नहीं है, but they are kind of synonyms. कोई smart है and intelligent है, कोई shy है, sneaky है. Fourth, dishonest is to honest as always is to never. Dishonest का opposite honest है तो always का opposite never. 5. Milk is to calf as wool is to. Milk है वो cow देती है तो wool कौन देता है? Sheep. 6. Teacher is to school as doctor is to hospital. Teacher है वो school में होते हैं, hospital में doctor होते हैं. Clinic, the option clinic is given तो वो भी लिख सकते हो, दोनों correct है. 7. Well is to mammal as fly is to. Well mammal है तो fly कौन करता है? Bird. 8. Bird is to nest as squirrel is to. Bird nest में रहते हैं squirrel tree पे. 9. Straw is to drink as fork is to. Straw से हम drink कर सकते हैं and fork से eat. 10. Delhi is to India as Tokyo is to. Delhi है वो इंडिया का कैपिटल है, वैसे टोक्यो जापान का कैपिटल है. Trivia. Analogies depend on the concept like as they often take the form of similes. Analogy से वो concept पे depend है कि दोनों opposite है या दोनों में कुछ similarities हैं उस पे, और वो similes means दोनों में कुछ similarities होती हैं. Chapter 52 Paramveer Chakra Stories. Let us remember our real heroes. Living a very comfortable life, we often forget that this life doesn't come to us for free. इस चैप्टर में परमवीर चक्र जिनको मिले हैं उनकी स्टोरीज बताए हैं, जो रियल हीरोज़ हैं उनकी स्टोरी है. तो हम बहुत ही कंफर्टेबली रहते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि हमें ये कंफर्टेबल लाइफ है वो फ्री में नहीं मिली है. There are some men in uniform giving their sweat and blood 24/7 for us to live that way. कुछ सोल्जर्स हैं जो बॉर्डर पे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए 24/7 मीन्स एवरी डे वहाँ पे वो वर्क करते, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और इसीलिए हम ऐसे कंफर्टेबली रह सकते हैं. हियर आर स्टोरीज ऑफ सच ब्रेव मैन who not only saved the lives of many with their gallantry but also showed us the true meaning of bravery. तो यहाँ पे ऐसे कुछ ब्रेव मैन हैं, उनकी स्टोरीज बताई हैं जिन्होंने अपनी ब्रेवरी से बहुत से लोगों की लाइफ्स बचाई है, और साथ में हमें ये भी बताया है कि ब्रेवरी का ट्रू मीनिंग क्या है. फॉर देयर सुप्रीम एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी, cold courage and devotion to duty, they were also decorated with the Paramveer Chakra, the highest Indian gallantry award. परमवीर चक्र है वो सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है, जो ब्रेवरी है, बहादुरी है, उसके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है परमवीर चक्र. तो ये जो सोल्जर्स है जिन्होंने बहुत अपनी ब्रेवरी दिखाई है, जिन्होंने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से की है, उनको दिया गया है. फर्स्ट वन, मेजर सोमनाथ शर्मा. He was awarded the medal for his bravery in Kashmir operations in November 1947. 1947 में जो कश्मीर में मिलिट्री ऑपरेशंस हुए थे, वहाँ पे उनकी जो ब्रेवरी थी उस वजह से उनको परमवीर चक्र मिला था. Even though his right hand was cast in a plaster, he insisted on being with his comrades in battle. उनके राइट हैंड में फ्रैक्चर था, प्लास्टर लगा हुआ था, तो भी उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं अपने जो सोल्जर्स हैं उनके साथ मिलके बैटल लड़ूंगा. While he was busy fighting the enemy, a mortar shell exploded on the ammunition near him.
उनके पास जो एम्यूनेशन, जो सारे वेपन्स रखे हुए होते हैं, उसमें एक मोटार शेल है, जो तोप का गोला होता है, वो वहाँ पे आके एक्सप्लोड हो गया। The brave soldier sacrificed his life fighting but prevented the fall of Srinagar and perhaps the Kashmir Valley to Pakistan. वो लड़ते लड़ते उनकी लाइफ चली गई, बट उन्होंने श्रीनगर और कश्मीर दोनों को ही बचा लिया पाकिस्तान के पास जाने से। Second, Captain Gurbachan Singh Salaria. When a civil war-like situation developed in Congo after the Belgians quit the country, the United Nations opted for military intervention to retrieve the situation, in which India contributed by sending an army of around 3,000 men to the UN force. तो जो कॉन्गो है वहाँ पे बेल्जियंस है, वो वहाँ से चले गए और फिर वहाँ पे एक सिविल वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, और तब यूएन है उसने अपनी मिलिट्री वहाँ पे भेजी, सो दैट वहाँ पे सिचुएशन है वो नॉर्मल रहे। तो इंडिया ने भी वहाँ हेल्प करने के लिए अपने 3,000 सोल्जर्स भेजे थे। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया prevented the enemy from going to the roundabout, saving the UN headquarters in Elizabethville. तो ये जो कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया हैं, उन्होंने जो एनिमी है, दुश्मन है, उसको वहाँ पे आने से रोका था और यूएन के जो हेडक्वार्टर्स है उसको प्रोटेक्ट किया था। थर्ड, Major Dhan Singh Thapa. Major Thapa was commissioned at the 8th Gorkha Rifles in August 1949. अगस्त 1949 है तब उनको 8th Gorkha Rifles से वहाँ पे उनको ड्यूटी दी गई थी। The Sirjak Valley in the north of Pangong Lake, Ladakh, was considered important for the defense of Chushul Airfield Sirjak 1. One of these posts was held by a platoon of D Company under the command of Major Thapa when the Chinese attacked India in October 1962. तो जो लद्दाख है वहाँ पे एक एरिया है सिरजक वैली, वहाँ पे उनकी ड्यूटी थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट था सो दैट चुशुल में जो एयरफील्ड है उसका प्रोटेक्शन किया जा सके। सिरजक 1 है, इसमें से एक पोस्ट पे जो प्लेटून होता है, प्लेटून है वो सोल्जर्स का ग्रुप होता है जिसमें 30 to 40 सोल्जर्स होते हैं। हर एक कंपनी है, कंपनी में 3 से 4 प्लेटून्स होते हैं, एक कंपनी में अराउंड 120 to 200 सोल्जर्स होते हैं। तो ये है वो इनके जो हेड है मेजर धन सिंह थप्पा, वो उनको हैंडल कर रहे थे। और तभी जो चाइनीज़ मिलिट्री है उन्होंने अटैक किया था इंडिया पे इन अक्टूबर 1962। मेजर थप्पा रिवोल्टेड द अटैक एंड द एनिमी हैड टू पे हैवी लॉसेस। मेजर थप्पा है, उन्होंने एनिमी पे अटैक किया और उनको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा था जो एनिमी है उनको। 4. अब्दुल हमीद. During the 1965 Indo-Pak War, the enemy tanks had penetrated the forward company positions. जो 1965 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी उसमें जो हमारे सोल्जर्स जो फ्रंट पोजीशन पे होते हैं उनका जो उनकी कंपनी होती है उसमें से एनिमी के टैंक्स अंदर आने लगे थे। Hamid was commanding a recoilless gun detachment and knocked out 2 enemy tanks, following which the enemy brought down their concentrated machine gun and shot high explosive fire at him. तब जो एनिमी है उनके पास टैंक्स थे बट हमारे पास ऐसा नहीं था, तो ये जो अब्दुल हमीद हैं उन्होंने वहाँ से जो 2 टैंक्स है एनिमीज़ के उसको ख़त्म कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। और तभी एनिमी है उसने कॉन्सेंट्रेटेड मशीन गन वहाँ पे लाके और बहुत सारे एक्सप्लोसिव फायर है, हाई एक्सप्लोसिव्स है, वो उस पर फायर कर दिए थे। Even though he was badly wounded and bleeding profusely, he didn't care about himself and kept firing. उनको बहुत ज़्यादा चोट आई थी तो भी अपने लाइफ के लिए केयर किए बिना उन्होंने फाइट करना कंटिन्यू किया एंड वो फायरिंग करते रहे थे। चैप्टर 53, फ्रीडम फाइटर्स आर नेशनल हीरोज। फ्रीडम फाइटर्स के बारे में चैप्टर है। A freedom fighter is a person engaged in a resistance movement consisting of efforts by Indians to obtain political independence from the British rule. ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे और उसी से इंडिया को फ्री करने के लिए जिन्होंने जो भी एक्टिविटीज़ की है वो सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। फर्स्ट वन राम प्रसाद बिस्मिल है,
He was one of those young revolutionaries who paid down their lives for the sake of their motherland. वो उनमें से एक क्रांतिकारी थे, रिवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी अपने कंट्री को फ्री कराने के लिए. He was an important member of the group that was involved in काकोरी ट्रेन डकैती. काकोरी ट्रेन को लूट लिया गया था, तो उसमें से जो ग्रुप था उनके वो एक इम्पॉर्टेंट मेंबर थे. Second, his name is synonymous with sacrifice, courage, bravery and vision. उनका नाम है वो जैसे एक सिनोनिम है sacrifice, courage, bravery और vision का. He sacrificed his life at the age of 23 and became an inspiration for others. सिर्फ 23 years के थे तभी उन्होंने अपनी लाइफ को sacrifice कर दिया था अपने कंट्री के लिए. उनका नेम है भगत सिंह. Third, she was one of the greatest women freedom fighters of India. She promoted the cause of Indian freedom movement outside India. इंडिया के जो वुमेन फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें से ये एक थे, और इंडिया के बाहर भी इंडिया की फ्रीडम के लिए मूवमेंट्स चलाने में, उनको प्रमोट करने में उनका बहुत बड़ा रोल था. उनका नेम है मैडम कामा. 4. He was an active member of the Indian National Congress and a great freedom fighter. वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक एक्टिव मेंबर थे और बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे. He took part in most of the important movements. जितने भी important movements थे उन सब में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. उनका नेम है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद. 5. He founded the Indian National Army and raised the slogan तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. He was jailed 11 times between 1920 and 1941. इंडियन नेशनल आर्मी उन्होंने बनाई थी और उन्होंने स्लोगन भी दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. उनको 11 टाइम्स जेल भेजा गया था 1920 से 1941 के बीच में. उनका नेम है सुभाष चंद्र बोस. 6. He was one of the firebrand freedom fighters of India. He gave the slogan Swaraj is my birthright and I shall have it. He was called लोकमान्य तिलक. तो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें से ये एक थे. उन्होंने स्लोगन दिया था कि स्वराज जो है वो मेरा बर्थ राइट है और मैं उसको लेके ही रहूँगा. उनको लोकमान्य तिलक भी बुलाते थे. उनका नेम है बाल गंगाधर तिलक. चैप्टर 54 इंडियन माइथोलॉजी. We are lucky to enter with mythological facts. Choose the correct option. इंडियन माइथोलॉजी के बारे में ये पूरा चैप्टर है. फर्स्ट, in Hindu mythology, which daughter of Prajapati was Adi Shakti, the wife of Shiva? इंडियन हिंदू माइथोलॉजी है, उसमें प्रजापति के कौन से डॉटर थे जिनको आदि शक्ति कहते हैं, शिव भगवान के वाइफ थे. द करेक्ट आंसर इज बी, सती. सेकेंड, इन महाभारत हु हैड अ बो कॉल्ड विजया? महाभारत में किनके पास बो था जिसका नेम विजया था? करेक्ट आंसर इज बी, कर्ण. Third, which god are the first and the last hymns of Rig Veda dedicated to? ऋग वेद के जो फर्स्ट और लास्ट हिम्स हैं वो कौन से गॉड को डेडिकेट किए गए हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज सी, अग्नि. 4. इन विच युग लॉर्ड कृष्ण वॉज बोर्न? लॉर्ड कृष्ण कौन से युग में उनका बर्थ हुआ था? आंसर इज बी, द्वापर युग. 5. हु वॉज विष्णुज मदर व्हेन ही वॉज इनकार्नेटेड एज वामना? विष्णु भगवान जब वामन रूप में उनका जन्म हुआ था तो उनके मदर कौन थे? आंसर इज सी, अदिति. 6. नेम अर्जुना एंड द्रौपदी सन. अर्जुन और द्रौपदी के सन का नेम क्या था? ऑप्शन ए, श्रुतकर्मा. 7. अकॉर्डिंग टू द महाभारत हु वॉज द ओनली सन ऑफ गंगा एंड किंग शांतनु? गंगा और किंग शांतनु का एक ही सन था, वो कौन सा था महाभारत में? इसके बारे में बताया है. ऑप्शन ए, भीष्म. 8. इन रघुवंशा विष्णु टुक अवतार रीइनकार्नेटेड एज? रघुवंशा में विष्णु भगवान जो है उनका पुनः जन्म होता है जिसको हम कहते हैं रीइनकार्नेशन. उन्होंने एक अवतार लिया था, वो कौन सा रूप था उनका? आंसर इज सी, राम. 9. इन हिंदू माइथोलॉजी हु इज नोन एज द गुरु ऑफ असुरास? जो असुर है उनके गुरु कौन है? ऑप्शन बी, शुक्राचार्य. 10. What is common to सत्याभामा, कालिंदी, जाम्बवती एंड रुक्मिणी? इन सब में कॉमन क्या है? ऑप्शन बी, दे वर ऑल मैरिड टू लॉर्ड कृष्ण.
कृष्ण भगवान है उनकी वो सब वाइफ्स थी, उनको उन्होंने मैरी किया था। चैप्टर 55 एप्टीट्यूड 1 अंडरस्टैंड द पैटर्न्स एंड टेक राइट फ्रॉम द सेट्स ऑफ आंसर्स विच कम्स नेक्स्ट। तो यहाँ पे कुछ हमें रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए हैं, तो हमें पैटर्न को समझ के फिर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट में देखो 205, 306, 407, 508 ऐसे दिया है, तो फिर बाद में आंसर क्या आना चाहिए, तो 101 प्लस किया जा रहा है। सो अगर हम 500 में 101 प्लस करें तो 609 है, वो करेक्ट आंसर होगा। 205 प्लस 101 दैट इज सी 306। वैसे ही 306 में 101 प्लस करें तो 407, 407 में 101 प्लस करें तो 508, और 508 में 101 प्लस करें तो 609। सेकेंड 145, 256, 367, 478, तो इसमें क्या किया गया है, 111 को प्लस किया है। 145 प्लस 111 इक्वल्स टू 256। 256 में अगर हम 111 प्लस करेंगे तो वो 367 होता है। वैसे ही 367 में 111 प्लस करें तो 478, 478 में 111 दैट इज 111 प्लस करेंगे तो 589 है, वो करेक्ट आंसर है। थर्ड 3317, फिर 4416, 5515, 6614, तो यहाँ पे 1099 प्लस करते जाना है। तो हम 6614 में 1099 प्लस करेंगे तो आंसर होगा 7713। What comes next? Take right from the set of given answers. तो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स दिए हैं और आपको बताना है कि नेक्स्ट पैटर्न कौन सी होनी चाहिए। तो फोर्थ है, उसमें हम देख सकते हैं पहले अपवर्ड्स, फिर राइट साइड, फिर डाउनवर्ड्स एंड फिर लेफ्ट साइड दिखाया है, तो उसके बाद अगेन अपवर्ड्स वाली साइन आएगी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 5 है, उसमें आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो पैटर्न है उसमें कोई भी डॉट नहीं है, सेकेंड में एक डॉट है, थर्ड पैटर्न में 2 डॉट्स है, फिर 3 डॉट्स है, तो उसके बाद 4 डॉट्स आएंगे, इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 6, तो 6 में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट जो पैटर्न है उसमें एक ही लाइन है, फिर 2 लाइन्स है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो उसके बाद 5 लाइन्स आनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर। 7 में फर्स्ट में 2 लाइन्स है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो उसके बाद 6 लाइन्स वाला पैटर्न आएगा। 8, तो 8 में आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो मैंने दिखाया है फिगर उसमें 3 लाइन्स हैं, उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6, तो फिर 7th वाला होना चाहिए, सो ऑप्शन सी है दैट इज करेक्ट आंसर। स्टडी द पैटर्न एंड कंप्लीट द सीरीज, तो हमें सीरीज कंप्लीट करनी है, तो सी के बाद DEF छोड़ के मीन्स 3 अल्फ़ाबेट्स छोड़ के G, फिर अगेन 3 अल्फ़ाबेट्स छोड़ेंगे G के बाद HIJ, फिर K है, फिर LMN छोड़ के O है, फिर PQR छोड़ के S है, तो S के बाद STUV, फिर W आएगा, फिर XYZ कंप्लीट हो जाता है तो A। नाउ 10th जो है उसमें हम देख सकते हैं कि MNOPQ ऐसे दिया है, तो R और S आएगा, फिर सेकेंड लेटर जो है वो उल्टा चल रहा है, RQPONML होना चाहिए, सो RM एंड SL है, वो करेक्ट आंसर्स है। चैप्टर 56 एप्टीट्यूड 2 व्हाट कम्स नेक्स्ट, तो इसमें भी हमें रीजनिंग वाले क्वेश्चंस दिए हैं। नाउ जो फर्स्ट वन है उसमें से जो क्रॉस की साइन है, तो एक क्रॉस की साइन कम होती जा रही है, तो सेकेंड पैटर्न में एक क्रॉस की साइन कम हो गई, नीचे की लाइन में 3 क्रॉस थे उसमें से 2 रह गए, उसके बाद 2 में से एक कम हो गया और एक ही रह गया, उसके बाद वो एक क्रॉस है वो भी निकल गया, तो 2 लाइन्स ही बची है, सो ऐसे सी ऑप्शन है इज करेक्ट, क्योंकि उसमें सेकेंड लाइन में से एक क्रॉस कम है। सेकेंड लाइन है उसमें एक एक लाइन कम हो रही है, सो फर्स्ट है उसमें हम देख सकते कि वहाँ पे जो अंदर का जो रेक्टेंगल है उसमें से एक लाइन कम हो गई है, ऐसे करते अगर हम लाइंस कम करते जाएं तो ऑप्शन ए है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड, Jacob's mother is 36 years old. She is 6 times as old as Jacob. जैकब की मदर 36 ईयर्स की है और वो जैकब से 6 टाइम्स बड़ी है।
तो हमें पहले तो फाइंड आउट करना है कि जैकब की एज क्या है। तो अगर हम 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 6। तो जैकब 6 ईयर्स का है। हाउ ओल्ड विल जैकब बी 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 5 ईयर्स के बाद जैकब कितने ईयर्स का होगा। अभी 6 का है तो हर साल उसकी एज 1 ईयर बढ़ेगी। तो 6 + 5 वो 11 ईयर्स का होगा। फोर्थ, क्रॉस द ऑड वन आउट। इसमें से ऑड वन कौन सा है। तो फर्स्ट है ABC, फिर PQR STU MNO। तो DEF होना चाहिए, DEG नहीं, सो दैट इज ऑड। फिर फिफ्थ है उसमें BCGH KL QR and TV। तो यहाँ पे TV है, दैट इज ऑड, क्योंकि उसमें एक लेटर बीच में स्किप हो गया है। STU आता है, मीन्स TU होना चाहिए, TV नहीं। 6. Write the smallest and the greatest 4-digit number using the digits 3409। हमें डिजिट्स दिए हैं 3409, उसका यूज़ करके हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखने हैं। अगर हम स्टार्टिंग में 0 लिखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो वो 349 हो जाएगा। 4 डिजिट नंबर लिखना है, इसलिए हम पहले लिखेंगे 3, फिर 0, फिर 4 एंड 9, एंड ग्रेटेस्ट डिजिट में होगा 9430। 7. If 14 students are standing in the line, 14 students total line में खड़े हैं। सलमान इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। सलमान है वो लेफ्ट साइड से अगर काउंटिंग करें तो फोर्थ खड़ा है। What is his position from right? Hint, number of students minus position plus 1। तो यहाँ पे हमें 14 स्टूडेंट्स हैं, तो वो जो लेफ्ट साइड है वहाँ से फोर्थ है, तो हम अगर राइट साइड से काउंट करेंगे तो वो कौन से नंबर पे होगा, 11th। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 14, फिर पोजीशन उसकी है फोर्थ, तो 14 में से 4 जाएंगे तो 10, और प्लस 1 करेंगे तो 11। क्वेश्चन 8, शेड 3 अपॉन 8, दैट इज 3 पार्ट्स को शेड करना है। तो सर्कल में भी हम 3 पार्ट्स शेड करेंगे, और जो स्क्वायर्स है वो भी 3 स्क्वायर्स शेड करेंगे, टोटल 8 है उसमें से। फिर जो 9th क्वेश्चन है उसमें हमें सिर्फ एक ही पार्ट को शेड करना है 3 पार्ट्स में से। तो सर्कल और जो स्क्वायर एक शेड करेंगे, और सर्कल में से भी उसका एक ही पार्ट हम शेड करेंगे। आपको पेंसिल यूज़ करके शेडिंग करनी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर्स आई एक्सप्लेन्ड। थैंक